So we are studying about photoelectric effect, है ना? Right. ये कर रहे थे हम लोग. And in photoelectric effect, I told you about what is the meaning of photoelectric effect, how it happens, right? How the electron is ejected from the metal surface that is made up of specific metal like potassium, rubidium, cesium. Along with that, we have studied what will be the kinetic energy of electron that will be ejected from the metal surface when the light with a specific energy, right? Because we know light is made up of the photons, so light have a particle characteristic that is we are going to determine with the help of this experiment, that is photoelectric effect, right? So when the light with a specific energy, that is with a sufficient frequency and wavelength impact on the surface of a metal, electrons gets ejected from its surface and it travels in a straight line towards the positively charged electron, right? And this phenomena is called as photoelectric effect. And we have just represented this experiment with the help of a tube which has a vacuum inside, two metal electrodes with the terminal positive and negative terminal. This is negative terminal, this is positive terminal, right? This is vacuum inside it. So when a light with a sufficient energy gets impacted on this negatively charged electron, the electron gets ejected like this. It moves in the direction of positively charged electron because the electron has a negative charge. Now this is light, and we know that light has some kind of a energy, and due to this energy, electron gets ejected from the surface of a metal. We have studied. This metal is made up of potassium, rubidium, cesium, because these are the metals from which the electron can be ejected easily. Okay? Its ionization energies are very less. Now, there is a need of sufficient kind of energy to remove an electron from the metal surface. So metal itself has minimum energy, right? That energy is called as threshold energy. What is threshold energy? It is the minimum amount of energy that is required to remove an electron from the metal surface. Metal surface. Now the point is, this threshold energy must be possessed by the light. If light doesn't possess this much amount of threshold energy, then electron can't be removed from the metal surface. If light has more energy than the threshold energy, then the electron will be removed from the metal surface and it will move in the forward direction like this. It means electron will be removed from the metal surface and it has sufficient kinetic energy also to move in the direction of positively charged electron. Correct? So this electron has kinetic energy. Right? This is the energy of light, and we represented energy of light as h nu, where nu is the frequency of radiation that is impacted on the surface of a metal. Threshold energy we are going to represent in terms of h nu 0, right? Where nu 0 is the threshold frequency, right? And we determined that this energy of light h nu is equal to threshold frequency plus the kinetic energy of electron that is ejected from the metal surface. And this kinetic energy is given by the formula that is 1 by 2 mv square, where m is mass of electron, v is the velocity of electron that is been ejected from the metal surface, and this is the energy of light. So using this formula, we are going to calculate the kinetic energy of electron that is ejected or the threshold energy of the metal surface, right? So kinetic energy of metal can be given as 1 by 2 mv square. Sorry, kinetic energy of electron is given as 1 by 2 mv square is equal to this h nu 0 will go on this side. H nu, that is energy of light, minus threshold energy, like this. Since h is constant and h is a Planck's constant, so we can take it as like this: nu minus nu 0, that is frequency of light minus threshold frequency,
into h, and this will give you the kinetic energy, that is 1/2 mv square. One by 2 mv square. One more point here. The threshold energy is also called as, you should note it, it is also called as work function. Is also called as work function, and in some book it is represented like this phi. This symbol represents phi. Right? All right. ये समझो, अच्छा टॉपिक है. This is very important topic and very interesting also. ना हुआ ये था कि हमने लाइट के बारे में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में एक चीज पढ़ी कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज both the characteristics, wave characteristic also and particle characteristic also. ये देखा हम, दोनों देखा, वेव कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जिसको हमने बोला देखा. अब डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट है, और इस साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई देखो, तुम बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के पास में वेव कैरेक्टर भी है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है, वो तो ठीक है. तो इसका ये कहना था कि जैसे लाइट के या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव और पार्टिकल कैरेक्टर है, तो वैसे इसका ये कहना था कि कोई पार्टिकल अगर है, पार्टिकल मतलब सॉलिड पार्टिकल की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है सॉलिड पार्टिकल, समझ में रहे. तो कोई सॉलिड पार्टिकल है, जैसे कि मान लो कोई एटम है ना, तो वो सॉलिड पार्टिकल होगा, है ना, एटम. तो उस पार्टिकल के पास भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसमें भी वेव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और उसमें भी पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. अब पार्टिकल है तो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें रहेगी, लेकिन इसका कहना था डी ब्रोगली का उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होगी, उसमें वेव की कैरेक्टरिस्टिक भी होगी. बात समझ में आ रही है? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको क्या बोलते हैं, वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव कैरेक्टरिस्टिक तो थी, लेकिन ऐसे बोला गया कि उसमें पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक भी है. डी ब्रोगली बोले तुम ऐसे बोल रहे हो कि वेव में अगर पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिकल में वेव कैरेक्टरिस्टिक भी है. समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो गया? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? पहले वाली थियरी हमारी और डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, ये था हमारा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. वेव पार्टिकल क्या था? ड्युअलिटी, जो हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में. यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस. उसने क्या बोला वो समझ में आया सबको? ठीक है. ठीक है, जैसे हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही पार्टिकल जो होता है, जो छोटा है, उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव की भी होती है, और पार्टिकल है वो सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली होगी. अब आपको पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है क्या? पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऐसे बॉल इमेजिन करो ना, आप कोई बॉल, ऐसे पार्टिकल है ना, वो बॉल है आपके पास, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगी? दीवार पे मारोगे वापस आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां से कुछ पपड़ी वपड़ी निकाल देगा, है ना, जोर से मारोगे तो. वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इमेजिन करो ना आप, ठीक है कि नहीं? वेव कैरेक्टरिस्टिक कैसे इमेजिन करोगे आप? वेव जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? तो उस तरीके से इमेजिन करोगे तब ना समझेगा आप. ठीक है, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ऐसे सोचना पड़ेगा तभी होगा. तो ये पार्टिकल जो है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कौन बोला? डी ब्रोगली जो है वो बोला. ठीक है, अब ये कैसे प्रूव किया हमने, बताओ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमने कैसे प्रूव किया? भाई ये जो है ये डिफ्रैक्शन शो करता है. क्या शो करता है? डिफ्रैक्शन शो करता है कि नहीं? लाइट डिफ्रैक्ट होता है कि नहीं? राइट. दूसरा, इंटरफेरेंस शो करता है. क्या शो करता है? इंटरफेरेंस. एक वेव दूसरे वेव पे, है ना, इसमें देख लेना पूछ के सर को फिजिक्स में, एक वेव दूसरे वेव पे इस तरह से कोइंसाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. ये शो करता है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस. तो इसलिए बोला कि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव. और वो वेव की कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा था, इसलिए उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक है. पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल को अगर आप फेंकोगे, ऐसे पार्टिकल को फेंक दिया तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, मोमेंटम होगा, उसका कुछ होगा कि नहीं? ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि नहीं आपने फिजिक्स में, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। वो वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसकी है? पार्टिकल की है। वो लाइट की है क्या? नहीं। तो ये जो मोमेंटम है ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसा देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, पार्टिकल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी होती है? तो मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम होता है। साथ में उसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, जो हमने स्टडी भी किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा हमने। क्या देखा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। इम्पैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन निकला। जैसे ये बॉल है, इस बॉल को दीवार पे मारा, इम्पैक्ट हुआ, यहाँ से कुछ निकला, ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कि उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है कौन सी, मोमेंटम है उसमें, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो शो करता है। इससे इन दो कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो कि पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज पार्टिकल कैरेक्टर। आप समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे होगा पार्टिकल में। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल लिया जिसका कुछ मास है, और बहुत छोटा पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन। आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, बहुत छोटा, लेकिन मास तो है ना, बहुत कम मास है लेकिन मास है इलेक्ट्रॉन का, है ना? तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मैंने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन लिया। उस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया? एक्स ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पे फेंक दिया। ऐसे मैंने बोला कि भाई तू इधर से इधर चला जा, ऐसे। एक्सेलरेशन के साथ जाएगा ना कुछ ना कुछ। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाएगा तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं? मोमेंटम तो होगा ना, जा रहा है ना इधर, तो उसमें मोमेंटम होगा। उसमें क्या होगा? मोमेंटम होगा। बराबर है। साथ में ये अगर किसी मेटल वेटल पे या किसी तीन सरफेस पे कोलाइड होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्योंकि इसमें ऐसी एनर्जी होगी ना, जब एक्सीलरेशन के साथ जाएगा, एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली है कि वो क्या शो करेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पार्टिकल की, है कि नहीं? इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर है। इस इलेक्ट्रॉन में क्या है? पार्टिकल कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर हुआ। दूसरा देखते हैं वेव के साथ। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जब ऐसे फेंकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी हमें डिफ्रैक्शन क्या करता है? शो, डिफ्रैक्शन शो करता है। और साथ में ये हमें इंटरफेरेंस भी शो करता है। क्या शो करता है? इंटरफेरेंस भी शो करता है। फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है डिफ्रैक्शन और इंटर। डिफ्रैक्शन का मतलब कैसे? जैसे मान लो ये इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बीच में कोई तो भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, इसको टकरा के ऐसे इधर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट होना किसी एंगल से। तो ये कौन शो करता है? इलेक्ट्रॉन शो करता है। अब बताओ ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? वेव की है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अरे हाँ या ना? वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है और वो वेव कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर रहा है। ठीक है, राइट। तो ये है अंडरस्टैंडिंग डी ब्रोगली का क्या कहना था, पहले क्या हुआ था, ठीक है, अब क्या हो रहा है, और उसको क्या एक्सप्लेन करना है। अब लिखना है आपको सिस्टमेटिकली। व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट राइट इट। लिखो इसको। द पार्टिकल्स आर, हाइपोथेसिस लिख रहे हैं आप लोग, लिख लो। द पार्टिकल्स आर associated with wave and particle character. Wave and particle character similar to that of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation similar to that of
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट, स्टेटमेंट से समझ में आया कि पार्टिकल जो है दीज आर एसोसिएटेड, मतलब वो शो करते हैं क्या, वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर सिमिलर। कैसा, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा था वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टर। अब बात समझ में आई। ये है हाइपोथेसिस, किसका किसका हाइपोथेसिस है, दिस इज हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी है, हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक थ्योरी है, ठीक है। Right. और उस थ्योरी को कोई एक्सपेरिमेंट से वो प्रूव करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। ठीक, ऑल राइट। सो फॉर पार्टिकल having velocity less than c. Now what is c? C is velocity of light. C is velocity of light. So the particles, ऐसे पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी अगर वो पार्टिकल के पास है तो हम बोलेंगे वो लाइट ही है एक तरीके से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है, ऐसे पार्टिकल के लिए द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, एंड मोमेंटम, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ऑफ मटेरियल पार्टिकल is given as lambda, that is wavelength, is equal to h upon p, where h जो है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, h is equal to प्लैंक्स कांस्टेंट, h is equal to प्लैंक्स का क्या होता है, कांस्टेंट। h is equal to क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम याद रखो, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है पी, देखो मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है मास इनटू वॉल्यूम। क्या होता है, मास इनटू वॉल्यूम, राइट, मास ऑफ पार्टिकल इनटू, मास इनटू वॉल्यूम नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, इसको चेंज करो, इट्स v इज नॉट अ वॉल्यूम, इट्स अ वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे p की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी रख सकता हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब यहाँ पे डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन क्यों दिया और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लो। लैम्डा क्या होता है बताओ, वेवलेंथ, लैम्डा क्या होता है बताओ, वेवलेंथ, और वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है, या फिर हम बोलेंगे वेव की होती है, बराबर। पी क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम किसका होता है बेटा बताओ, पार्टिकल का, किसका होता है, पार्टिकल का। तो डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्लेन किया है, किसका रिलेशन एक्सप्लेन किया है, वेव का और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक का ही तो एक्सप्लेन किया है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, वही तो एक्सप्लेन कर रहे थे हम, वेव और पार्टिकल कैरेक्टर, और उसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक।
वेव कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर, दोनों का रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है, एक चीज ऐसे हो सकती है कि मान लो इस पी को मैं इस साइड में भेज दूं, तो मेरा जो ये इक्वेशन है वो चेंज होकर कैसे बन सकता है, लैम्डा वेवलेंथ इनटू करूंगा मैं पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच। व्हाट इज एच? लेंथ कांस्टेंट। नाम ही कांस्टेंट है ना, मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, हमें पता है ना, 6.6 into 10 to the power -34, तो ये कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट कांस्टेंट। तो इससे ये कांस्टेंट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बताओ, कि प्रोडक्ट ऑफ, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो मोमेंटम कम होगा, और मोमेंटम बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगी, ताकि ये जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वो क्या रहे, कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना चाहिए ना, क्योंकि हमें वैल्यू तो कांस्टेंट रखनी है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक अगर 1 से, जैसे मान लो लैम्डा पहले 1 था और पी आपका कितना था, यहाँ पे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। पी आपका कितना था, 1 था, ऐसे हुआ, इनिशियली ऐसे था, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, लैम्डा इंटू पी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 into 1 बराबर, ये कांस्टेंट है। अब मान लो ये लैम्डा जो है वो बढ़ के हो गया 2, तो पी को कम होना पड़ेगा, पी हो जाएगा 0.5, ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो अब इसका मल्टीप्लाई करके देखो, लैम्डा इंटू पी का, लैम्डा इंटू पी कितना होगा, 2 into 0.5 कितना आ जाएगा बताओ, 1 ही आएगा ना। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ेगी, राइट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम, ताकि उसका प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। लिख लो स्टेटमेंट इसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल कैरेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टोटल कैरेक्टर इज कांस्टेंट, टोटल कैरेक्टर इज कांस्टेंट। कौन सा कैरेक्टर, लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेव कैरेक्टर एंड पी रिप्रेजेंट्स मोमेंटम रिप्रेजेंट्स पार्टिकल कैरेक्टर। तो वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। So as wave character increases, wave character increases, wave character मतलब lambda increases, particle character decreases। पार्टिकल कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल कैरेक्टर मतलब मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, पार्टिकल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, पार्टिकल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये कहाँ दिखने को मिलता है। पहले इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है और वो पार्टिकल की तरह है, क्योंकि उसमें मास है, ठीक है, दोनों है शो कर रहा है, वेव और पार्टिकल, राइट। अब मान लो कि मैं इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा देता हूँ, समझ में आ रहा है? अब इसको समझो, देखो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत छोटा है, मास इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लेस, निग्लिजिबल है, क्या है, निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, पार्टिकल कैरेक्टर तो वो शो कर ही रहा है, क्योंकि वो मास तो है ही, इसमें कुछ तो है, और ये वेव कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वेव कैरेक्टर भी शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत कम है। मास जब कम होता है ना इस चीज का, तो उसमें वेव कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वेव में हमें पता है मास नहीं होता, ठीक है, और उसका पार्टिकल कैरेक्टर थोड़ा कम हो जाता है। पार्टिकल कैरेक्टर मतलब पी हमारा जो हो जाएगा m इंटू वी वाला, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो, इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे, मतलब ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत मेरे पास छोटा था ऐसे, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं जब इसको एक साइड में ऐसे फेंकूंगा ना, ऐसे जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में से जब जा रहा है, तो वो जाते टाइम आपको ऐसे लगेगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल कैरेक्टर तो आपको दिख नहीं रहा है, बहुत कम है, मास नेग्लिजिबल है, तो वो जाते टाइम आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे 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 जा रहा है, बात समझ में, ऐसे दिखेगा, ऐसे जा रहा है, वेव की तरह जा रहा है, ऐसे दिखेगा, क्योंकि इसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा है, पार्टिकल कैरेक्टर कम है, मास कम होने के कारण, बात समझ में आई?
अब मान लो मैंने इसके जगह पे एक बड़ा सा क्रिकेट का बॉल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? क्रिकेट का बॉल। पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन की जगह ये इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन में मास कम था तो पार्टिकल कैरेक्टर कम था, तो वो वेव की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा था, है कि नहीं? देखो, इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल कैरेक्टर कम था मतलब पी कम था, मास कम तो पी कम होगा ना, क्योंकि पी के इस पे डिपेंड होता है, मास पे होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मास कम तो पी भी कम होगा ना। अरे यस नो कुछ तो बोलो यार। है ना? कि अगर मोमेंटम कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा कि नहीं, मतलब पार्टिकल कैरेक्टर कम है, मास कम है, तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? वेवलेंथ ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेवलेंथ होता है। ये वेवलेंथ ज्यादा है तो आपको ऐसे दिखेगा ना। वेवलेंथ अगर छोटी होती, मान लो बहुत छोटी वेवलेंथ है, तो कैसे दिखता आपको? ऐसे ऐसे दिखता कि नहीं? ऐसे दिखता। बात है कि नहीं? ऐसे दिखता ना, राइट? तो यहाँ पे अभी वेवलेंथ ज्यादा है इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि उसका मास कम है तो उसका पी कम है, पी कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट आनी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो ऐसे दिखेगा ना ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा आगे तो कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। क्लियर? हाँ भाई, अब आते ही इस पे, देखो क्रिकेट बॉल। अब आपने क्रिकेट तो देखा होगा, है ना, अब चालू भी है आईपीएल। तो क्रिकेट जब आप देख रहे हो तो जब वो बैट्समैन बॉल को मारता है, तो बॉल को मारता एक स्पीड से जाता है ना, वो भी एक्सेलरेशन के साथ जाता है, बराबर? तो वो जब जाता है तो उस टाइम पे क्या आपको बॉल ऐसे दिख रहा है कि बॉल ये ऐसे गया, वेव ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे दिखता है क्या आपको? नहीं ना, सीधा दिखता है ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे दिखता है ना, क्या वो वे भी दिखता है? नहीं। क्यों ऐसे होता है वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्यों ऐसे होता है यहाँ पे? इसलिए ऐसे हो रहा है क्योंकि मास ज्यादा है, करेक्ट है भगवान, राइट? क्योंकि क्रिकेट बॉल, ये इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, राइट? अब इस पे आते हैं, इस पे दोनों पार्टिकल और वेव, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का देखा। अब बताओ, यहाँ पे पार्टिकल जो है मतलब मोमेंटम पी जो है इसका ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि मास ज्यादा है ना, है कि नहीं? क्रिकेट बॉल हो सकता है आधा किलो का हो, समझ में रहा? इलेक्ट्रॉन का मास तो कितना कम होता है भाई, माइनस कितने में चला जाता है, ठीक है, 10 टू द पावर में। ये कितना बड़ा होगा, है कि नहीं, उसके कंपैरिजन में? तो मास ज्यादा, मास ज्यादा तो पी ज्यादा, और पी ज्यादा तो हमारे रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे लैम्डा इंटू पी के हिसाब से, अगर पी ज्यादा है तो लैम्डा क्या होगा? कम होगा ना। वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, राइट? राइट। वेवलेंथ लेस, वेवलेंथ लेस मतलब, अब ये जो है, ये जो है वेवलेंथ ऐसे जाएगा कि ये ऐसे होता तो वेवलेंथ बड़ी है। अब वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी मतलब वो ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ में आ रही है? अगर वो ऐसे जाएगा तो स्ट्रेट ही दिख रहा है ना आपको, क्या आपको वेव दिख रहा है उसमें? यस। So it has particle character more compared to the wave character because of its higher mass. और जिसके कारण उसकी वेवलेंथ कम है तो आपको ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेट ही जा रहा है, वेव के फॉर्म में नहीं जा रहा है। अब बात समझ में आई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? किसी को कोई डाउट है अभी? वाई लार्ज पार्टिकल, राइट, लाइक क्रिकेट बॉल, लार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इधर, क्रिकेट बॉल does not show wave like character, wave like character, राइट? अभी आपको समझ में तो आ ही गया वेव लाइक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करता। लिख लो इसको 2 लाइन में फटाक से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? यस, बिकॉज मास इज मोर। लिख लो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, सिंस, देखो यहाँ पे, सिंस इट्स डी ब्रोगली,
wavelength is too short, बहुत छोटी है. It is difficult to observe its wave-like characteristic. Wave-like characteristics. It's difficult to observe wave-like characteristics. Okay. Now the next question is that we have. Let's do some calculation. Question is calculate. I'll take it on another page. Calculate wavelength lambda calculate करने of a ball of mass 0.1 kilogram moving with velocity 10 meter per second. 10 meter per second. देखो सॉल्यूशन ये है कि हमें गिवन है लैम्डा कैलकुलेट करना है हमें. ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है. वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है. ठीक है, अच्छी बात है, मीटर में चाहिए हमें. और जो मास दिया है m इज इक्वल टू 0.1 kg दिया है, उसको किलोग्राम में ही रखेंगे. आप रखेंगे किलोग्राम में ही रखेंगे. ठीक, अब इसलिए क्यों मैं बोल रहा हूँ किलोग्राम में, क्योंकि ये नोट कर लो आप. 1 जूल का मतलब कितना होता है किलोग्राम के हिसाब से. 1 जूल का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. ये इसका यूनिट है, याद रखना. जूल का मतलब क्या होता है किलोग्राम. 1 किलोग्राम 1 है तो क्या मतलब है. जूल का मतलब क्या है किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड का इनवर्स. ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लैम्डा इज इक्वल टू है h अपॉन mv. ये हमारा फॉर्मूला है. करेक्ट, इज द फॉर्मूला. अब इस केस में h की वैल्यू हमें पता है. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 6.6 इंटू 10 टू द पावर -30. आगे वाली वैल्यू मैंने नहीं लिखी, अप्रोक्सीमेट करके मैं लिख रहा हूँ 6.6 टू 6. नहीं तो कोई बोलेगा सर 26 बोलिए, है ना. वो है डिवाइडेड बाय m जो है मेरा वो है 0.1 किलोग्राम. मैं वैसे ही लिख रहा हूँ. ये है मेरा जूल इंटू सेकंड, इसका यूनिट होता है बराबर h का. ये मेरा है किलोग्राम इंटू मेरे पास है वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. सो 10 मैं लिख रहा हूँ इधर मीटर. ठीक है, इंटू सेकंड या फिर इंटू सेकंड का इनवर्स मीटर पर. 1 जूल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2. ऐसा है, ये -2. अब चेक कर लो. अब वैल्यू रखा है हमने सब. ठीक है, रख देंगे यहाँ पे. लैम्डा हमें निकालना है. लैम्डा इज इक्वल टू ये है हमारे पास. देखो 0.1 इंटू 10 कितना होगा 1 होगा. 0.1 इंटू 10 कितना होगा 1 होगा. बचेगा क्या 6.6. ऊपर ऐसे इंटू 10 टू द पावर क्या बचेगा -34. फुल की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ. देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड रेज़ टू द पावर -2. इंटू क्या लिखूं मैं, ये सेकंड बचा, डिवाइडेड बाय यूनिट क्या है इधर से
1 बचेगा ना, 10 इंटू 0.1, 1 बचा, 1 इंटू 1 का यहाँ पे बचा गया किलोग्राम, मीटर बचा, सेकंड बचा। नहीं नहीं नहीं, कहा हो गया, ये तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा ना, ये तो वेलोसिटी है। ओके, ये है यूनिट, ये हमने चेंज कर दिया -2, ये मीटर पर, ये मीटर पर सेकंड है, कंफ्यूजन नहीं होना, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो सही है। अब देखो यहाँ पे हो क्या गया, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, एक मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया, मीटर बचा सिर्फ, ठीक है। ये सेकंड इनवर्स है, इसको ऊपर ऊपर लेके जाओगे तो सेकंड बन जाएगा, बराबर है। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ क्या, मीटर बचेगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, -34 मीटर। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 क्या आएगा, मीटर। ये आएगा आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये आपका क्या आएगा, डी ब्रोगली का वेवलेंथ आएगा। मोस्ट ऑफ द लोगों का ये यहाँ पे करेक्ट है, राइट। कैलकुलेट वेवलेंथ है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन with velocity, with velocity 100 meter per second, calculate wavelength of electron with velocity 100 meter per second. You know what is the weight of electron, mass of electron आपको पता है, हाँ, वो आप खुद ही ढूंढोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने सबसे पहले लिया था उसकी वैल्यू m के वहां पे रखोगे, ठीक है। वेलोसिटी आपको गिवन है कितना, 100 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप खुद लिखोगे m, ठीक है, कितना आता है, किलोग्राम में लेना है आपको, ठीक है, राइट। और वो वैल्यू रखो और वेवलेंथ को फाइंड आउट करो, ठीक। सी, तो द पॉइंट हियर इज, हमें निकालना है लैम्डा। अब सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, हमें किलोग्राम में ही चाहिए, याद रखना है आपको। तो H अपॉन mv, लैम्डा इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 ले लिया हमने, डिवाइडेड बाय m, मास क्या है हमारे पास, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जरूरत नहीं अभी, क्योंकि हमें पता चल गया कैसे कैंसिल ऑटोमेटिकली होता है, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखो 100 है यहाँ पे, ये 10 टू द पावर 2 हुआ ना, 100 का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 2 हुआ। अब 31 में से 2 गया, कितना बचेगा, 29 बचेगा ना, ये 29 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 6.6 और नीचे रहेगा 9.1, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 10 टू द पावर -34, मल्टीप्लाइड बाय ये जो 29 था ऊपर गया, 10 टू द पावर 29, -29 था ऊपर चला गया प्लस। अब 34 में से आप 29 को क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचेगा, -5 बचेगा ना। तो 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 बचेगा। ये अगर सॉल्व करोगे आप यहाँ पे 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1 को सॉल्व करोगे तो ये आपको दे देगा 0.72 के आसपास आंसर, मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 10 टू द पावर -5, ये आंसर आएगा। 0.72 बोलो 73 बोलो चलेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इज नॉट मीटर। तो ये जिसका जिसका आंसर आया, किसी किसी ने 7.2 निकाला इंटू 10 टू द पावर 6 कर दिया -6, वो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि अगर आप, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता कि फाइंड और कैलकुलेट वेवलेंथ इन, यहाँ पे बोल देता इन नैनोमीटर, ऐसे बोलता, इसमें पूछता आपको नैनोमीटर में,
ये आया मीटर में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। बताओ कितना आएगा वैल्यू? यस दत्तराज, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, नहीं। ठीक है, तो आंसर ये ऐसे कन्वर्ट करना है, 1 नैनोमीटर इंटू द पावर -9 मीटर, तो आपको 5 दिया है, -9 लाना है, 4 पॉइंट इस साइड में सरका दोगे तो आपको -9 मिल जाएगा, तो -9 का मतलब हुआ नैनोमीटर हो गया। इस तरीके